Hello students, this is Hardik sir, and today we will be starting our lesson number 4 from standard 7, History. The title of the lesson is The Mughal Empire. So we have already seen about the Battle of Panipat, which was fought in 1526 between Babur and Ibrahim Lodi. And in that battle, the last ruler of Delhi Sultanate, we can say the last Lodi ruler, Ibrahim Lodi, was defeated by Babur, and in India, the Mughal Empire was established. So, in the introductory part, you will find ruling as large a territory as the Indian subcontinent. So, such a large territory like Indian subcontinent with such a diversity of people, you can find the diversity of food, language, culture, religion, all the things. So, such a large territory and even with such a vast variety of people and culture was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Ages. Means it was very difficult for any of the ruler to rule in the Middle Ages. So during that particular period, it was not easy to rule such a vast territory like India and with such a vast variety of people. Quite in contrast to their predecessors. So जो उनके पहले रूल करके गए थे यहाँ पे, as we are learning about the Mughal Empire. सो बिफोर दी मुग़ल एम्परर्स, जो उनके प्रेडिसेसर्स थे जिन्होंने रूल किया था, उनसे बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट, टोटली ऑपोजिट. द मुगल्स क्रिएटेड एन एम्पायर अकम्प्लिश्ड वॉट हैड हिदर टू मीन्स टिल डेट, आज तक जो किसी ने नहीं किया था, समथिंग लाइक दैट. सीम्ड पॉसिबल फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम, जो कुछ ही वक्त के लिए पॉसिबल लगता था. एंड क्वाइट इन कॉन्ट्रास्ट, यू कैन अंडरस्टैंड, जो उनके पहले रूल कर चुके थे आज तक, आज की तारीख तक, उनके लिए देवर मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. इट सीम्ड पॉसिबल फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम. फ्रॉम द लेटर हाफ, लेटर मीन्स पीछे का अगर हम बात करें तो पिछली आधी सेंचुरी 16th सेंचुरी में दे एक्सपेंडेड देयर किंगडम फ्रॉम आगरा एंड दिल्ली. सो बाय द हाफ ऑफ द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी आगरा एंड दिल्ली से एक्सपेंशन शुरू होता है और आप देख सकते हैं अनटिल इन द 17th सेंचुरी दे कंट्रोल्ड नियरली ऑल ऑफ द सब कंटिनेंट. सो you can understand within a short period of time the Mughals had a control over the subcontinent, means Indian subcontinent. They imposed the structures of administration, you can understand that particular, now they had the criteria of administration, proper policies were now imposed and ideas of governance that outlasted their rule, means until they have ruled till that time, these ideas were the part of the administration, were part of the governance, leaving a political legacy that succeeding rulers of the subcontinent couldn't ignore. यानी कि जो आइडियाज़, जो स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने खड़ा किया, ये एक पॉलिटिकल गिफ्ट था, पॉलिटिकल लेगेसी था, जो आने वाले सक्सीडिंग रूलर्स हु वर दी नेक्स्ट रूलर्स, ये सब कंटिनेंट, इंडियन सब कंटिनेंट के थे, जो उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते थे. यानी दे वर एट द लेवल, यू कैन अंडरस्टैंड, फॉर द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन. टुडे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया addresses the nation on Independence Day from the ramparts of the Red Fort in Delhi. As you can see this word rampart, that is the higher part. So from that rampart today, from Red Fort, you can see the picture of a Red Fort from where the Prime Minister of India addresses the nation, we can say, on Independence Day, and that was the residence of Mughal emperors. So here is the picture. In your book also you can find the same picture. Apart from this, we will continue. Who were the Mughals? So now we have the introduction about the Mughals. So Mughals were descendants of two great lineages of the rulers. Two great lineages, you can understand, they were the descendants of two great dynasties, we can say. From their mother's side, yani maternal side, they were descendants of Genghis Khan, who died in 1227. From mother's side, they were the descendants of Genghis Khan. The Mongol ruler, Genghis Khan was a Mongol ruler who ruled over parts of China and Central Asia. From their father's side, they were the successors of Timur, who died in 1404. And Timur was the ruler of Iran, Iraq and modern day Turkey.
So you can understand two major powerful people. You can find mother's side Genghis Khan, and from the father's side you can find Timur. So they were the descendants of these two great rulers. However, the Mughals did not like to be called Mughal or Mongol. हालांकि ये उन्हें पसंद नहीं था, और उसका रीज़न वी आर गिवन विद द रीज़न एंड वाई दे डिडेंट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल और मंगोल. दिस वॉज बिकॉज गेंजिस खान्स मेमोरी वॉज एसोसिएटेड विद द मैसेकर, हत्याकांड, बहुत बड़ा हत्याकांड ऑफ इनन्यूमरेबल पीपल. तो इसीलिए, क्योंकि इनन्यूमरेबल, जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता, इतने लोगों को मारा गया है, और वो याद दिलाता था गेंजिस खान से, इसीलिए शायद उन्हें ये मंगोल्स कहलाना पसंद नहीं था. इट वॉज ऑल्सो लिंक्ड विद द उज़्बेक्स फ्रॉम उज़्बेकिस्तान रूलर्स. सो उज़्बेक्स से भी ये कनेक्टेड था, इसीलिए जो कि मंगोल कॉम्पिटिटर्स थे उनके, दैट्स वाई दे डिडंट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल्स और मंगोल्स. आगे हम एक पिक्चर भी देखने वाले हैं. ये सब इन्फॉर्मेशन वी विल बी गोइंग थ्रू जस्ट आफ्टर द नेक्स्ट, ये कंटिन्यू पैराग्राफ ख़त्म करके. सो ऑन द अदर हैंड द मुगल्स वर प्राउड ऑफ देयर टिमुरिड एंसेस्ट्री. सो जो उनकी फादर के साइड से था, नॉट लीस्ट ऑफ ऑल बिकॉज द ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398. सो दैट यू हैव स्टडीड ऑलरेडी इन 7th स्टैंडर्ड. तिमूर जो एक तूफ़ान की तरह आए थे, हमने उन्हें पढ़ा है बराबर. So their great ancestor had captured Delhi in 1398. So they were very proud of their Timurid ancestry. They celebrated their genealogy pictorially. जो पिक्चर के फॉर्म में उन्होंने इन्हें सेलिब्रेट किया है. Each ruler getting a picture made of Timur and himself. सभी रूलर ने ऐसे पिक्चर बनवाए हैं जिसमें तिमूर है और वो खुद भी है. यानी जो एक्चुअली आप समझ सकते हैं 200 साल पहले ये जी चुके हैं. 1404 में तो तिमूर का डेथ हो चुका है, पर पिक्चर्स बनवाए गए हैं उनके साथ उनके. सो यू कैन नाउ टेक अ लुक टू फिगर 2 विच इज़ समवॉट लाइक अ ग्रुप फोटोग्राफ, जो कि एक साथ कभी बैठे नहीं हैं, आप समझ सकते हैं, बट एक ग्रुप फोटोग्राफ के तौर पे एक पिक्चर यहाँ बनवाया गया है, विच यू कैन सी ऑन द प्रीवियस पेज ऑफ योर टेक्स्ट बुक. एंड यू आर ऑल्सो हेल्प्ड विद द इन्फॉर्मेशन कि यहाँ क्या कौन कहाँ है. सो अ मिनिएचर पेंटिंग, what do you mean by miniature painting? स्मॉल स्केल्ड पेंटिंग कहा जाता है जिन्हें, छोटा सा पेंटिंग. सो अ मिनिएचर पेंटिंग ऑफ तिमूर. तो ये मिनिएचर पेंटिंग तिमूर का है. ये तकरीबन बनाया गया है 1702 से 1712 के आसपास. अब आप ऊपर देख सकते हैं तिमूर वॉज डाइड इन 1404, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं. सो दीज आर डेट्स टू बी मेमोराइज्ड. सो यहाँ 1702 से 1712 के बीच में तकरीबन ये पेंटर बना है, हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं. सो यहाँ पे हीज डिसेंडेंट्स एंड मुगल एम्परर्स जो सभी दिख रहे हैं. तिमूर इज़ इन द सेंटर, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, ही इज़ इन द सेंटर. देन यू विल फाइंड ऑल दी अदर रूलर्स, जैसा आप देख सकते हैं. एंड हीज़ ऑन हिज राइट इज़ हिज सन मीरा शाह, जो यहाँ आपको सबसे पहले दिख रहे हैं. द फर्स्ट मुग़ल एम्परर, बाबर्स ग्रेट ग्रैंडफादर, जो सबसे पहले मुग़ल एम्परर थे बाबर थे. बाबर एस्टाब्लिश्ड मुग़ल एम्पायर. सो यहाँ मीरा शाह दिख रहे हैं सबसे पहले, जो उनकी राइट में बैठे हैं, जो तिमूर के बेटे हैं और बाबर के ग्रेट ग्रैंडफादर है. एंड देन अबू सईद, जो आपको यहाँ दिखेंगे उनके बाजू में, दैट इज़ बाबर्स ग्रैंडफादर एज यू कैन फाइंड. नेक्स्ट यू विल फाइंड हियर by the sequence itself all the orders are given, so read it very carefully and also try to identify each of them. To the left of the Timur are सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा, जो कि अगेन बाबर के ग्रेट ग्रैंडफादर है, जो यहाँ आपको दिख रहे हैं. नेक्स्ट यू कैन फाइंड उमर शेख, जो बाबर्स फादर, जो बराबर यहाँ आपको दिखेंगे. उसके बाद आपको 3 नाम एक साथ दिए गए हैं. एज यू कैन फाइंड द मुगल एम्परर्स बाबर, अकबर एंड शाहजहाँ आर 3rd, 4th एंड 5th टू तिमूर्स राइट. बाबर, अकबर एंड शाहजहाँ, जो यहाँ आपको तीनों दिखेंगे, बाबर, अकबर एंड शाहजहाँ एक साथ यहाँ पे. एंड टू लेफ्ट एज यू कैन सी हुमायूं, जहांगीर एंड औरंगज़ेब. सो हियर दे आर हुमायूं, जहांगीर एंड औरंगज़ेब टू द लेफ्ट.
So it seems like a group photograph. These all rulers were not at all contemporary, जो कि एक साथ नहीं थे, समकालीन नहीं थे, but this is a picture which was painted, and as we have seen that they were proud of Timurid ancestry, so that's why उनके साथ ये पिक्चर्स बनवाए गए हैं. Now let us have a look over मुग़ल मिलिट्री कैंपेन्स. सो यहाँ आपको फिगर 3 में मुग़ल मिलिट्री कैंपेन दिख रहा है. एज यू कैन सी मुग़ल आर्मी ऑन कैंपेन, जो फिगर 3 सजेस्ट कर रहा है. बाबर जो कि फर्स्ट मुग़ल एम्परर थे, जिनका रूल आप देख सकते हैं बहुत छोटा सा पीरियड रहा है 1526 से 1530. ही वॉज सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगना इन 1494 व्हेन ही वॉज ओनली 12 years old. सो बाबर का इंट्रोडक्शन बराबर याद रखें. जो हम मुग़ल सल्तनत इंडिया की बात कर रहे हैं वहाँ उनका रूल 1526 से 1530 तक है. बट ही वॉज थ्रोन्ड फर्स्ट, ही वॉज सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगना इन 1494, जबकि उनकी उम्र केवल 12 साल थी. ही वॉज फोर्स्ड टू लीव हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप द उज़्बेक्स, जिनके कॉम्पिटिटर हमने अभी आगे बात कर ली है. आफ्टर ईयर्स ऑफ वेंडरिंग ही सीज्ड काबुल इन 1504. इन 1526 बाबर डिफीटेड सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी, जो हमने देखा पानीपत में बैटल हुआ था. 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड बाबर, और जिसमें इब्राहिम लोदी वॉज डिफीटेड, और तब बाबर ने दिल्ली एंड आगरा को कैप्चर कर दिया. टेबल 1 जो कि हम अभी देखने ही वाले हैं, दैट विल गिव यू सम ऑफ द मेजर कैंपेन्स ऑफ द मुगल्स, जहां हम सभी के सभी ऐसे मेजर कैंपेन्स देखेंगे. स्टडी इट केयरफुली एंड सी इफ़ यू कैन नोटिस एनी लॉन्ग टर्म पैटर्न्स. अगर ऐसी कोई लॉन्ग टर्म पैटर्न्स ध्यान में आती है तो उसे नोट करके रखें. यू विल नोटिस फॉर एग्जाम्पल दैट द अफगान्स वर एन इमीडिएट थ्रेट टू द मुगल अथॉरिटी. इमीडिएट थ्रेट हो सकता है वो कभी भी अटैक करे या किसी भी तरह से उनके लिए खतरनाक साबित हो सकते थे. नोट द रिलेशनशिप बिटवीन, you can see this also while we will be going for the upcoming chapters 7th, 8th, 10th and even 9th chapter, between the Mughals and the Ahoms, the Sikhs, Mewar and Marwar. ये सब हम अलग अलग लेसन में पढ़ने वाले हैं. If you want to see right now, you also can read in advance. So before you start reading with 7, 8, 9 and 10 chapter, I request you to read even the 4th chapter which we are studying right now. How was Humayun's relationship with Safvid Iran different from Akbar's? So इन दोनों के रिलेशन में क्या फ़र्क था अकबर के और हुमायूं के रिलेशन में, जो ये सफ़ीद थे ईरान के उनके साथ, जो हम यहाँ टेबल 1 में देखेंगे. दीज आर ऑल द थिंग्स जो आपको नोटिस करना है. Did the annexation of Golconda and बीजापुर in औरंगज़ेब्स रेन एंड हॉस्टिलिटीज़ इन द डेक्कन, क्या वहाँ से डेक्कन में हॉस्टिलिटी ख़त्म हो गई, क्या हुआ, हम देखेंगे टेबल 1 में. बिफोर वी मूव टू टेबल 1, हियर यू आर ऑल्सो हेल्प्ड विथ सम पिक्चर. एज यू कैन फाइंड हियर दी सम कैनन्स यू कैन सी, जो कि यहाँ आपको दिख रहे हैं ऐसे गन्स बड़े बड़े. सो ऐसे जो कैनन्स थे, सो कैनन्स वर एन इम्पॉर्टेंट एडिशन इन 16th सेंचुरी वॉरफेयर. तो ये एक नई चीज़ थी जो बहुत इम्पॉर्टेंट एडिशन था 16th सेंचुरी में. बाबर यूज्ड दैम इफ़ेक्टिवली इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. सो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत आपको पता ही है किन के बीच में हुई, और बाबर वॉज द विनर. गन पाउडर टेक्नोलॉजी वॉज ब्रॉट टू इंडिया फॉर वॉरफेयर इन द 14th सेंचुरी. बाबर ने भले ही 16th सेंचुरी में यूज़ किया है, पर ऑलरेडी इंडिया में ये टेक्नोलॉजी 14th सेंचुरी में आ चुकी थी. Firearms were used for the last time in regions such as Gujarat, Malwa and Deccan, and was used by Babur in early 16th century. So जो पहली बार गुजरात, मालवा और डेक्कन में यूज़ किया गया 16th century में by बाबर. Now let us have a look on table 1. So you can find here with the table 1 the title Mughal Emperors, Major Campaigns and Events. So we are going to see only about the major campaigns and events. हर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन इसमें शायद आपको ना मिले, पर मेजर इन्फॉर्मेशन सभी यहाँ डाली गई है. फर्स्ट इन द बिगिनिंग यू कैन फाइंड बाबर
who ruled from 1526 to 1530 as a Mughal emperor in India. So in the beginning you can find 1526 इब्राहिम लोदी को डिफीट किया और उसके अफ़गान सपोर्टर्स को भी डिफीट किया एट पानीपत. इट्स अ मेजर इवेंट जहाँ से फाउंडेशन हुआ मुग़ल एम्पायर का. इन 1527 बाबर डिफीटेड राणा संघ, राजपूत रूलर्स एंड अलाइस एट खानवा. सो 1527 में जो राजपूत रूलर्स का अलायस थे, सब थे अलाइस, उनको डिफीट किया गया बाय 1527. आफ्टर दैट यू कैन फाइंड इन 1528 defeated the Rajputs at Chanderi and established control over Agra and Delhi before his death. So यह मेजर इवेंट्स थी बाबर के जीवन की. हुमायूं 1530 से 1540 उन्होंने रूल किया. उसके बाद आप देख सकते हैं 1555 से वापस वो पावर में आए, यानी 40 के बाद 15 साल नहीं थे पावर में. आफ्टर दैट ही रूल्ड फॉर ओनली 1 ईयर 1555 to 1556, क्योंकि नेक्स्ट ईयर व्हेन ही रिकैप्चर दिल्ली इन 1555, उसके दूसरे ही साल उनका ये ही बिल्डिंग में एक्सीडेंट से डेथ हो चुका था. सो हुमायूं डिवाइडेड हिज हेरिटेज अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर. हिज ब्रदर्स वर ईच गिवन अ प्रोविंस, यानी सब में जैसे उनके पिताजी की इच्छा थी बाबर की उस तरह बांटा गया. द एम्बिशंस ऑफ हिज ब्रदर मिर्ज़ा कामरान weakened Humayun's cause against Afghan competitors. So मिर्ज़ा कामरान was an ambitious ruler, और उसी की वजह से जो उनके अफ़गान कॉम्पिटिटर्स थे उनके सामने हुमायूं थोड़े कमज़ोर हुए. शेर खां डिफीटेड हुमायूं एट चौसा इन 1539 एंड इन 1540 कनौज में, यानी 2 बार हुमायूं वॉज डिफीटेड बाय शेर खां, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही वॉज फोर्स्ड टू फ्ली टू ईरान, और इसी वजह से हुमायूं फ्ली टू ईरान जो भाग गए थे. इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम द सफ़वीद शेख. जैसा आपको कहा था कि रिलेशन आप चेक कीजिएगा हुमायूं और अकबर का सफ़वीद के साथ. सो बिकॉज ऑफ द हेल्प फ्रॉम द सफ़वीद शाह ही रिकैप्चर दिल्ली इन 1555, और दूसरे ही साल एक्सीडेंट की वजह से यहाँ उनका देहांत हो गया. अकबर वॉज 13 ईयर्स ओल्ड जब वो शहनशाह बने, एम्परर बने. हिज रेन कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 पीरियड्स. तो अलग अलग तरह से आप देख सकते हैं उनका रूलिंग पीरियड 1556 से 1605 है, और उनके 3 हिस्से आपको यहाँ दिख रहे हैं. सो पहला हिस्सा 1556 से 1570 तक का है, जहाँ आप देख सकते हैं अकबर बिकेम इंडिपेंडेंट, जो कि बैरम खान के ऊपर डिपेंडेंट थे, और अदर मेंबर्स जो भी उनके डोमेस्टिक स्टाफ के थे उनके ऊपर. Military campaigns were launched against the Suris and other Afghans, against the neighboring kingdoms of Malwa, Gondwana, to suppress revolt of his half brother Mirza Hakim and the Uzbeks. So इसके अगेंस्ट में ये सब कैंपेन्स शुरू हो गए. इन 1568 सिसोदिया कैपिटल जो चित्तौड़ से बिलोंग करता था उन्हें भी सीज़ कर लिया गया, और रणथंबोर जो कि 1569 में कैप्चर कर लिया गया. सो दे वर दी अर्ली कैंपेन्स. 1570 से 85 अगर आप देखें, सो मिलिट्री कैंपेन्स गुजरात में शुरू हुए थे, और गुजरात के बाद ये कहाँ फैलते गए, तो बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा. और ये सब के सब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गए थे, क्योंकि एक रिवॉल्ट शुरू हुआ था इन सपोर्ट ऑफ मिर्ज़ा हकीम जो हाफ ब्रदर थे 1579 से 1580 के बीच में. तीसरा हिस्सा जो हम गिनते हैं 1585 से 1605, जहां अकबर का एम्पायर का एक्सपेंशन शुरू होता है. कैंपेन्स वर लॉन्च्ड इन द नॉर्थ वेस्ट. कांधार जो नॉर्थ वेस्ट आप समझ सकते हैं, डायरेक्शंस यू आर वेरी वेल अवेयर अबाउट. सो नॉर्थ, दिस इज वेस्ट. सो इफ़ यू लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, सो दिस पार्ट वुड बी नोन एज द नॉर्थ वेस्ट. सो नॉर्थ वेस्ट में कांधार जिन्हें सीज कर दिया गया फ्रॉम दी सफ़वीड्स. सो हियर यू कैन कम अगेन. हुमायूं जिनकी मदद से वापस आए थे, और अकबर ने उन्हीं का कांधार को सीज़ कर दिया. कश्मीर को एनेक्स कर लिया गया, ऑल्सो काबुल आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्ज़ा हकीम. सो यू कैन अंडरस्टैंड नाउ ये सब कैंपेन्स बहुत बड़े हो चले थे.
कैंपेन्स इन द डेक्कन ऑल्सो स्टार्टेड एंड बेरार, खानदेश एंड पार्ट्स ऑफ अहमदनगर, ये सभी हिस्से भी एनेक्स कर दिए गए। इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज रेन अकबर वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय द रिबेलियन ऑफ प्रिंस सलीम, द फ्यूचर एम्परर जहांगीर। सो जब प्रिंस सलीम जहांगीर नेक्स्ट रूलर जो बनने वाले थे, एम्परर बनने वाले थे, उनके रिबेल की वजह से अकबर वॉज डिस्ट्रैक्टेड। नेक्स्ट यू कैन फाइंड जहांगीर हु रूल्ड फ्रॉम 1605 टू 1627। मिलिट्री कैंपेन्स जो कि शुरू किए गए थे अकबर से, वो अभी भी चालू थे। द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवार अमर सिंह, जिन्होंने मुग़ल सर्विस को एक्सेप्ट कर लिया था। लेस सक्सेसफुल कैंपेन्स अगेंस्ट द सिख्स, द आहोम्स एंड अहमदनगर ऑल्सो फॉलोड। तो ये लेस सक्सेसफुल कैंपेन्स जो अभी भी चालू थे। प्रिंस खुर्रम, यू कैन नाउ कम टू नो, जो फ्यूचर एम्परर थे अगेन शाहजहाँ, जहांगीर के बाद जो नेक्स्ट एम्परर बनने वाले थे वो थे प्रिंस खुर्रम एंड ही वॉज टाइटल्ड एज शाहजहाँ, जिन्होंने भी लास्ट ईयर्स में जो इनका रूल था जहांगीर का, तब इन्होंने भी रिबेल किया। एंड द एफर्ट्स ऑफ नूर जहाँ, जो वाइफ थी जहांगीर की, जो उन्हें इन चीज़ों को कम करना चाहती थी, रिबेल को मार्जिनलाइज करना चाहती थी, बट दे वर ऑल अनसक्सेसफुल। तो वो भी उनमें सक्सेसफुल नहीं गई। नेक्स्ट यू कैन फाइंड अबाउट शाहजहाँ, जो कि हमने अभी ऊपर देखा। प्रिंस खुर्रम जो नेक्स्ट रूलर बने, यहाँ आप देख सकते हैं 1605 से 1625 एंड देन 1627 में शाहजहाँ के हाथ में पावर आता है। मुग़ल कैंपेन्स कंटिन्यूड इन द डेक्कन अंडर शाहजहाँ। द अफ़गान नोबल, आप देख सकते हैं खान जहाँ लोदी। सो अफ़गान नोबल थे जो खान जहाँ लोदी, जिन्होंने भी रिबेल किया और उन्हें डिफीट कर दिया गया बाय शाहजहाँ। कैंपेन्स वर लॉन्च्ड अगेंस्ट अहमदनगर, द बुंदेल्स वर डिफीटेड एंड ओरछा सीज कर दिया गया। सो ये सभी जगहों के नाम काफ़ी याद रखने ज़रूरी नहीं है, बट आई रिक्वेस्ट एक टेबल बनाए छोटा सा, एक ही टेबल में सब के नाम लिख दीजिए और हो सके तो वैसा फ़ोटो क्लिक करके ज़रा शेयर करें। इन द नॉर्थ वेस्ट द कैंपेन टू सीज बल्क फ्रॉम द उज़्बेक्स वॉज अनसक्सेसफुल, जहाँ उन्हें सफलता नहीं मिली। कांधार वॉज लॉस्ट टू सफवेज, जो आगे अकबर ने जीता, आपने देखा है। इन 1632 अहमदनगर वॉज फाइनली एनेक्स्ड। सो अभी ऊपर आप देख रहे थे अहमदनगर के साथ जहाँ अभी कैंपेन्स लॉन्च कर दिए गए थे और अल्टीमेटली अहमदनगर को एनेक्स कर दिया गया। एंड बीजापुर फोर्सेस श्यूड फॉर पीस, और जहाँ बीजापुर में सफलता नहीं मिली है। इन 1657 to 58 देयर वॉज कन्फ्लिक्ट ओवर सक्सेशन अमंग शाहजहाँ सन्स। सो शाहजहाँ के बेटों में भी सक्सेशन के लिए कुछ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुके थे, जिसमें औरंगज़ेब जो कि जीत जाते हैं, ही वॉज विक्टोरियस एंड इज 3 ब्रदर्स इंक्लूडिंग दारा शुकों, इन सबको मार दिया गया था। दे वर ऑल किल्ड। शाहजहाँ वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन आगरा। जैसा आपको सबको ही पता है, शाहजहाँ ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल जेल ही में बिताए। उनके बाद उनके बेटे औरंगज़ेब जो कि गद्दी पे आए, ही वॉज थ्रोन्ड इन द ईयर 1658। आहोम्स के अगेंस्ट में इन द नॉर्थ वेस्ट यू कैन फाइंड नाउ, दे वर डिफीटेड इन 1663 बट रिबेल अगेन इन 1680s। वापस इन्होंने रिबेल किया वहाँ पे। कैंपेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट अगेंस्ट द यूसुफजाई एंड द सिख्स वर टेम्पररीली सक्सेसफुल, यानी औरंगज़ेब को उसमें पूर्ण सफलता नहीं मिली थी। मुग़ल इंटरवेंशन यानी इंटरफियरेंस इन द सक्सेशन एंड इंटरनल पॉलिटिक्स of the राठौर राजपूत्स of मारवाड़ led to their rebellion, क्योंकि जब इंटरफियर किया and ultimately these Rajputs also rebelled. Campaigns against Maratha chieftain शिवाजी were initially successful शुरुआती दौर में, but औरंगज़ेब insulted शिवाजी who escaped from Agra, declared himself an independent king and resumed his campaigns against the Mughals। और फिर उन्होंने फिर से मुगल्स के ख़िलाफ़ अपने कैंपेन्स शुरू कर दिए। प्रिंस अकबर रिबेल्ड अगेंस्ट औरंगज़ेब एंड रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम द मराठास एंड द डेक्कन सल्तनत। ही फाइनली फ्लेड टू सफ़वीद ईरान।
सो बार बार आप ये सभी नाम देख रहे हैं, यू कैन अंडरस्टैंड, बट आई रिक्वेस्ट यू to read your textbook once and also watch this video again if you have any confusion. You can also ask your questions into comment. So प्रिंस अकबर जो औरंगज़ेब के बेटे थे, इन्होंने भी रिबेल किया। इन्हें सपोर्ट करने वाले थे कौन लोग? तो ये मराठास एंड डेक्कन सल्तनत। और अल्टीमेटली ही फ्लेड, वो चले गए सफ़ीद के पास ईरान में। आफ्टर अकबर्स रिबेलियन औरंगज़ेब सेंट आर्मीज अगेंस्ट द डेक्कन सल्तनट्स। बीजापुर वॉज एनेक्स्ड इन 1685, जो हमने देखा ऊपर, जहाँ पीस ट्रीटी जैसा हो चुका था, और गोलकोंडा जो 1687 में कैप्चर हुआ। फ्रॉम 1698 औरंगज़ेब पर्सनली मैनेज्ड कैंपेन्स इन द डेक्कन अगेंस्ट द मराठास हु स्टार्टेड गरिल्ला वॉरफेयर। सो ये डेक्कन में उन्होंने खुद पर्सनली ये सब कैंपेन्स किए हैं अगेंस्ट मराठास। औरंगज़ेब ऑल्सो हैड टू फेस द रिबेलियन इन नॉर्थ इंडिया ऑफ सिख्स, जाट्स एंड सतनामीस इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ आहोम्स एंड इन द डेक्कन ऑफ मराठास। सो कितने सारे रिबेलियंस आप देख सकते हैं। हिज डेथ वॉज फॉलोड बाय अ सक्सेशन कन्फ्लिक्ट अमंग हिज सन्स। तो उनकी डेथ के बाद सक्सेशन के लिए एक कन्फ्लिक्ट फिर से उनके बेटों के बीच में भी हुआ। यहाँ हमें सिर्फ औरंगज़ेब तक आप देख सकते हैं। सो वी आर गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट दी अर्ली रूलर्स, जिन्हें पावरफुल मुगल्स कहा जाता है। सो औरंगज़ेब तक यू कैन फाइंड द इंफॉर्मेशन, देन यू विल फाइंड, यहाँ पे एक मैप आपको दिखेगा। इन दिस मैप यू कैन फाइंड द मिलिट्री कैंपेन्स अंडर अकबर एंड औरंगज़ेब। तो अलग अलग सालों के हिसाब से यू आर ऑल्सो हेल्प्ड विद द ईयर्स, एज यू कैन सी कौन से साल में कौन सा टेरिटरी कंट्रोल में किया गया है। सो टिल दिस टाइम लेट इट बी हियर, वी विल हैव अ पॉज एंड वी विल बी स्टार्टिंग अवर पार्ट 2 फ्रॉम द मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन। क्योंकि हमने देखा सक्सेशन के लिए वारिस जो नेक्स्ट बनेगा, उसके लिए कहीं ना कहीं देयर वर सम रिबेल्स बाय द प्रिंसेस। सो बाय द पार्ट 2 वी विल लर्न that what were the traditions of Mughal for succession. You have to go through these two words. You should underline this. I am underlining this. So please be ready with these definitions at least, and then come again with the part 2. So before starting part 2, also read the textbook carefully. The entire page is what we have completed. Till then, keep reading, keep learning. Thank you.